Good morning, all of you. Students, I'm starting the further journal entries with the expectation that you have understood the previous ones. Well, that day we have discussed about started business with cash, sales and purchase. Fine. Today I'm talking about here, although I have prepared the format, but I'm not using this. Here you will mention the date. I'm simply writing one. Purchase furniture for cash, rupees 6,000. Here it's telling purchase furniture, right? Till now we have learned purchase goods. Students, goods are those items in which we are dealing. But if assets are given, what are the assets? Assets are the things which you are using in your business to earn more and more profits. Okay, in Hindi we call it sampatti. Fine. So when you are purchasing assets, so we don't use the word purchase and sale, yani ki these are not the goods, so we have to write their name. Normally you have to think you are business. Remember these 2 points. From business point of view you have to think, and in the books of the business you are passing the entry. Okay, so just become a business for a moment कि business ने furniture purchase किया है, right? तो what he is receiving, what is he paying? business में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है. आप फर्नीचर परचेज करते हैं तो क्या आएगा? फर्नीचर आएगा. ओके, सो सिंपली वी राइट द नेम फर्नीचर अकाउंट डेबिट, राइट? रियल अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो फर्नीचर इज कमिंग. एंड फॉर कैश, ओके, ऑन कैश बेसिस यू हैव परचेज, यानी कि नगद खरीदा है. तो व्हाट हैज़ गॉन, फर्नीचर आप खरीदते हैं तो क्या जाएगा? कैश, राइट? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. So furniture account debit 6,000 and credit side you will write 6,000. Students, please form your proper format and write the narration also. I have seen in your homework most of you didn't write the narration. So that's not fair at all. Otherwise you'll be habitual not to write, and that way you will lose your marks. Okay. Now another entry can be machinery purchased, right? I'm just doing a little bit changes. Purchased machinery from Mr. Sham, right? क्या बोला मैंने? परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम मिस्टर श्याम. द सेम थिंग्स विच आई हैव टॉट यू इन केस ऑफ सेल एंड परचेज. सेम रूल रेगुलेशंस विल बी फॉलोड. ओके, सो मशीनरी अकाउंट डेबिट. परचेज मशीनरीज एंड एसेट्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी आ गई, सपोज 10,000. ओके, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट? हैव यू पेड द कैश? I didn't say कि purchase machinery. If I say this much only, purchase machinery of rupees 10,000, it means this is on cash basis. I say purchase machinery for cash, that is also on cash basis. I said purchase machinery from Mr. Sham, right? Nothing else is given. That means you have purchased it on credit. Machinery account debit to Sham's account. It's 10,000. Okay. If I say purchase machinery from Mr. Sham on cash basis, then it is on the cash basis. Entry comes machinery account debit to cash. I think it's very, very clear to all of you. It can be any assets, typewriter, any other kind of assets, building, plant and machinery, anything. Okay. Now next, rent paid. Students, rent, just remember, paid and received, these two things are there. Paid means आप दे रहे हैं किसी को. when you commit an expenses, when you are committing, so you pay. And received, when do you receive? When it is a income for you. Okay, so rent paid, when you pay rent to somebody, just think, is that your expenses or income? आप किसी को rent pay कर रहे हैं तो आपके लिए expenses है या income? expenses है ये, ठीक है. और expenses का क्या करते हैं? which account tells? nominal account tells that all the expenses and losses are debited. So rent is your expenses, so we pass the entry rent account debit. If I say salary paid, paid salary, it's telling, right? Salaries are also expenses for you. Students, focus on this point, paid or received. If you're working somewhere, then you may receive the salary. So received salary is your income. Okay, but when it is paid, तो क्या आ जाएगा? पेड इज योर एक्सपेंसेस. फाइन, एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड. तो रेंट अकाउंट डेबिट, आई एम शोइंग इन ऑब्लिक, it can be
salary account debit also. Any amount can be there, say 500 only. So rent account debit या salary account debit, and it can be insurance account debit. If you pay the insurance premium, the insurance can be debited, or any other advertisement expenses account debit, right? Charity में दे रहे हैं तो that is also expenses, charity account debit. Any kind of expenses, right? That debit to what? Rent आप किस चीज़ में पे करते हैं? Of course कैश में पे करते हैं. Rent account debit to कैश अकाउंट. सैलरी भी कैश में पे करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम भी कैश में पे करते हैं. ओके, द एंट्री इज रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, वॉट एवर द अमाउंट इज गिवन है. फाइन. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनकम साइड. इफ वन सेज रिसीव्ड कमीशन, ओके, you are receiving commission, just think is that your expenses or income? आपको कमीशन मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, तो ये आपकी इनकम है. नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? जस्ट रिवाइज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट. डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन. ठीक है, तो ये कमीशन आपकी इनकम है, तो ये क्रेडिट हो जाएगी. वन पॉइंट इज क्लियर कि कमीशन इज क्रेडिटेड. ओके, टू कमीशन. फाइन. नाउ रिसीव्ड, इनफैक्ट व्हाट डिड यू रिसीव? कमीशन किस चीज़ में मिलता है आपको? बार्टर सिस्टम तो है नहीं. किस में मिलता है? कैश में मिलता है. कैश अकाउंट डेबिट. डेबिट व्हाट कम्स इन? यू आर रिसीविंग कैश, राइट? तो कैश अकाउंट डेबिट, सपोज 200 कमीशन का मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट 200 टू कमीशन. There is a name of every expenses and every income. Whatever the damn expenses and income is there, you will find the name. ठीक है, तो उस नाम को, अगर expenses है तो आप डेबिट करेंगे और income है तो उसको क्रेडिट करेंगे, राइट? एंड गया क्या है? एक्सपेंसेस है तो जाएगा कैश, क्रेडिट कर दिया. इनकम है तो क्या आएगा? कैश आएगा, उसको आपने डेबिट कर दिया. बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ऑल राइट, debit all the expenses and losses, credit all the income and gain. Clear, students? Okay, now next transaction they are talking about withdrew cash from office for personal use. Students, I'm taking those entries which you have missed in illustration number 1 and 2. I've given the photocopy of these one and I've just crossed a few points which I didn't teach you that day, so I'm taking those one. Here you can see illustration number 2, withdrew cash from office for personal use, whatever the amount. Okay, so see, business entity says कि business and businessmen both are separate. Okay, and for this reason when you invested the capital, so that is a liability for the business. Now you need some money, आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो आप बिजनेस से कहते हैं कि ठीक है भाई, मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे दे दें. The point is very clear. When you withdraw something from the business for your personal use, that is termed as drawing. Okay, उसको आप क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं, पर्सनल यूज के लिए निकालना. तो here we are withdrawing cash, right students? Okay, now I have told you about the personal account. Personal account are of 3 types: natural personal, representative personal and artificial. तो drawing is what kind of personal account? ज़रूरी नहीं है कि राम ने जो निकाला वो श्याम भी निकाले, ठीक है? तो दिस इज टोटली पर्सनलाइज्ड. तो ड्राइंग अकाउंट इज योर पर्सनल अकाउंट. ओके, सो देयर विल बी अ नेम ऑफ द पर्सन कि किसने विड्रॉ किया है एंड कितना किया है, राइट? तो ड्राइंग इज योर पर्सनल अकाउंट. बिजनेस, नाउ जस्ट रिमेंबर द रूल ऑफ द ड्राइंग. मिस्टर राम ने सपोज निकाला है, विड्रू ₹5,000 by Mr. Ram from the office for personal use. Okay, so this is personal account. The rule of personal account is debit the receiver and credit the giver. तो who is receiver of the money? Ram is the receiver, right? तो हम क्या करेंगे बिजनेस में? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, राइट? बिकॉज डेबिट द रिसीवर, यहाँ मिस्टर राम होंगे, तो वी डोंट हैव टू राइट द नेम, सिर्फ हमें ड्राइंग लिखना है. ओके, वो आपका जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें पर्सनली लिखते हैं कि किसका है, ठीक है? तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू व्हाट इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस. राम ने 5,000 रुपीज़ निकाले हैं, तो इनफैक्ट गया क्या है बिजनेस से? 5,000 रुपीज़ का कैश गया है, ठीक है? तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वी हैव रिटन इट इज any amount whatever they have withdrawn. Clear students? Drawing account debit to cash. When any partner is withdrawing or businessman is drawing something from the business in cash, cash से निकालता है, तो drawing account debit to cash. Okay, now let me clear one more entry here only.
Suppose you have a stationery business, students, fine, and your children need some books and copies because this is starting of the session, right? So you buy the books and copies from your own shop or from somebody else? Of course from the own shop. तो आप अपने बिजनेस से ही कुछ चीज़ें, कुछ गुड्स जिसमें कि आप डील कर रहे हैं वो निकाल लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, आप, दिस टर्म इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राइंग, राइट? वाई ड्राइंग? बिकॉज बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट. जो आपकी 5000 की गुड्स निकल के जा रही हैं आपके घर पे, उसका रिकॉर्ड हमें करना होगा ना. अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें मेंशन करना होगा कि ये गुड्स कहाँ गई हैं. आपने सेल भी नहीं किया, क्योंकि सेल करते हैं तो पैसा आता है. इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, सेल में मार्जिन इंक्लूड होता है. कॉस्ट प्लस मार्जिन इज टर्म्ड एज सेल्स, राइट? सो व्हेन यू विड्रॉ समथिंग, लेट्स कम टू द पॉइंट, इट्स वेरी सिंपल, कि आप ड्राइंग कैश में ना करके कुछ गुड्स निकाल लेते हैं, तो वन पॉइंट विल बी द सेम. ड्राइंग अकाउंट डेबिट, तो ड्राइंग अकाउंट तो डेबिट ही होगा, राइट? बिकॉज दिस इज पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, फाइन. नाउ व्हाट इज गोइंग? इज द कैश गोइंग स्टूडेंट्स? आपने बुक्स निकालनी है, स्टेशनरी आइटम निकाला है, तो मुझे बताएं कैश जा रहा है क्या? नो. क्या जा रहा है? आपकी गुड्स जा रही हैं, ठीक है? लेकिन हम गुड्स कहीं भी नहीं लिखते हैं. हमने सेल परचेज के टाइम पढ़ा था ना, वी डोंट राइट गुड्स, वी राइट इधर सेल और परचेज, राइट? तो हम यहाँ पे लिखते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. सपोज 2000 की हमने गुड्स विड्रॉ किए. नाउ व्हाई डिड आई राइट परचेज, राइट? दिस नीड्स क्लैरिफिकेशन कि हमने परचेज को क्यों लिखा है. ओके, let me tell you students, the day before yesterday I went to Delhi to buy some stationery item. वहाँ से मैं अपने स्टेशनरी आइटम खरीद के लाई थी. 10,000 के आइटम्स खरीद के मैंने रखे थे, ठीक है? तो मेरी परचेजेस कितने की थी? 10,000, राइट? एंड yesterday my children told me to get some books and copy from the shop, राइट? तो मैं किसी और से खरीदने के बजाय अपनी शॉप में जो रखा था स्टेशनरी आइटम, उसमें से 2000 के आइटम्स निकाल के घर ले गई, राइट? तो आपके पास 10,000 का जो परचेजेस था, उसमें से 2000 निकाल लिया आपने, तो क्या कम हुआ आपका? कौन सी गुड्स कम हुई? परचेजेस, राइट? जो आपने परचेज करके लाए थे, जो परचेज आइटम था, वो आपका कम हो गया. ओके, व्हेन यू परचेज, यू डेबिट द परचेज, डेबिट कम्स इन, राइट? तो उस टाइम जब खरीद के लाते हैं तो परचेज को डेबिट किया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. अब ये परचेज आइटम आपका कम हो रहा है, तो इसको आप क्रेडिट करते हैं. अंडरस्टूड? नाउ इट्स वेरी सिंपल. दीज वर द कॉन्सेप्ट्स विच आई हैव क्लियर्ड, राइट? दोज हु डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन वन अटैम्प्ट, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट ओनली, कि when you draw something for the personal use, right? तो in both the cases drawing will be debited. One thing is clear. Now, जिस चीज़ में आप निकाल रहे हैं उसको क्रेडिट कर दो. अगर आप कैश में निकाल रहे हैं तो कैश को क्रेडिट कर दो. लेटर ऑन वी विल स्टडी अबाउट द बैंक ट्रांजेक्शन ऑल्सो. अगर आप चेक में निकाल रहे हैं तो टू बैंक कर देंगे, और अगर आप गुड्स निकाल रहे हैं तो परचेज को क्रेडिट कर देना. दैट्स ऑल, राइट स्टूडेंट्स? विल यू रिमेंबर दीज पॉइंट्स? फाइन. ओके, वन ट्रांजेक्शन आई टेक ऑफ द return, goods return. Till now we have studied about the purchases. Let me take the entry, purchase goods from Ram on credit basis. So my entry is purchase account debit to Ram. We have discussed in detail. Okay, the goods were of the amount of 5,000, right students? My handwriting is like that, try to understand. Purchase account debit to Ram, fine. Now I have purchased goods, I brought the goods at my shop, I just checked the goods, but I didn't find these up to the mark. I didn't find the goods of the standardized which I have seen the sample. Goods sample के according नहीं थी. I didn't like a few items only. Then I just approached Mr. Ram. I said, Mr. Ram, your goods are not up to the mark, I want to return it. He said, okay fine, you can return. All right. तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें से 1000 रुपीज़ की गुड्स मुझे रिटर्न करनी है. रिटर्न गुड्स टू राम ऑफ ₹1000, ठीक है? रिटर्न गुड्स टू राम ऑफ ₹1000. आप मुझे बताएं व्हाट इज़ कमिंग एंड व्हाट इज़ गोइंग.
बिकम अ बिजनेस फॉर अ मोमेंट, बिजनेस बन जाइए एक मिनट के लिए। आप गुड्स वापस कर रहे हैं, ठीक है, आप 1000 की गुड्स वापस कर रहे हैं। क्या जा रहा है आपके पास से? व्हाट इज गोइंग? गुड्स आर गोइंग, ठीक है। और आ क्या रहा है? कुछ आ रहा है? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने क्रेडिट बेसिस पे खरीदा था। पहले आपको मिस्टर राम को पे करना था। लुक एट दिस एंट्री स्टूडेंट्स वंस अगेन। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। आप गुड्स ले आए 5000 की, आपको पे करना है राम को 5000। हियर दिस राम इज योर क्रेडिटर, आपको पे करना है ना, दिस इज योर लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटीज आर हैविंग क्रेडिट बैलेंस एंड अदरवाइज यू कैन सी इट इज रिटर्न इन द क्रेडिट साइड। तो राम इज योर क्रेडिटर, ओके। तो जब आप गुड्स रिटर्न करेंगे तो किसको कर रहे हैं? राम को। राम कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, एंड राम इज द रिसीवर। राम्स अकाउंट डेबिट। जब आप गुड्स दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं? हु इज द रिसीवर ऑफ दोज गुड्स? 1000 की गुड्स लेके गए तो कहीं भी फेंक के आएंगे क्या? यू विल गिव टू द पर्सन टू हुम यू हैव परचेज्ड, जिससे खरीदा था उसी को ही पे करके आएंगे। तो राम अकाउंट डेबिट, राम को अपने कितने से डेबिट कर दिया? 1000। राम इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स एंड अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, राइट। तो वन पॉइंट इज क्लियर कि राम इज द रिसीवर, आपने दे दी। नाउ व्हाट इज गोइंग? राम को दे दी, वो ठीक है, क्या दिया? गुड्स, ऑल राइट, वैल्यू 1000, बट आपके पास से गया क्या? इनफैक्ट क्या गया है? गुड्स गई हैं, ठीक है। तो गुड्स गई हैं, तो गुड्स को हमने क्या डिनोट किया था जब हमने परचेज किया था, राइट। गुड्स परचेज की थी तो हमने क्या लिखा था? परचेज। तो अब भी हम क्या लिख सकते हैं इसको? परचेज। वी हैव रिवर्स द एंट्री, राइट। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, वी हैव रिवर्स द एंट्री। यहाँ से आया था और ये उनको चला गया, तो राम इज द रिसीवर टू परचेज। बट स्टूडेंट्स वी डोंट राइट परचेज, रिमेंबर, बिकॉज दिस इज टोटली डिफरेंट। खरीदना एंड वापस करना, दीज आर टू डिफरेंट नेम इन हिंदी, so why can they be same in the English? Okay, so it has a specific name, that is to purchase return. All right, the thing is very simple. Purchase account debit to Ram and here Ram account debit to purchase return. Entry हम reverse कर देते हैं and साथ में return add कर देंगे, ठीक है। परचेज किया था तो परचेज को डेबिट करना है, रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, ओके। Now if I say and make the payment of the balance amount. Now what is the balance in Mr. Ram's account? Students, I was supposed to pay 5000 to Mr. Ram. Okay, 5000 पे करना था ना, खरीदा था। अब आपने 1000 की गुड्स मिस्टर राम को वापस कर दी हैं। अकाउंट्स को छोड़ेंगे आप, जस्ट सिंपली थिंक कि 5000 की खरीदी थी एंड 1000 की गुड्स आप रिटर्न कर देते हैं। तो जब आप पेमेंट करेंगे आफ्टर 15 days, हाउ मच यू विल बी पेइंग? यू विल बी पेइंग 4000 टू मिस्टर राम, ओके। सो मेक पेमेंट टू मिस्टर राम। हु इज द रिसीवर? राम इज द रिसीवर। राम अकाउंट डेबिट, हाउ मच इज ही रिसीविंग? 4000, ठीक है। क्या पे कर रहे हैं? नो बार्टर सिस्टम, क्या पे करेंगे? कैश, तो इट इज 4000। इफ आई से मेक पेमेंट टू मिस्टर राम थ्रू चेक, तो क्या हो जाएगा? राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। इज दैट क्लियर? एंड द सेम एंट्रीज गोज इन केस ऑफ सेल। इन वेरी शॉर्ट आई एम टेलिंग यू, सेल्स किया है मिस्टर श्याम से आपने, तो एंट्री क्या हो जाती है? श्याम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट। योर सेल्स विल बी क्रेडिटेड एंड ही इज योर डेटर, यू हैव टू पे दिस अमाउंट। सपोज 4000 का आपने सेल किया था। नाउ वाइस वर्सा, मिस्टर श्याम डजंट लाइक योर गुड्स, ही से कि आई डोंट लाइक दीज गुड्स, तो श्याम वापस कर रहा है गुड्स। आपने सेल किया था, अब मिस्टर श्याम आपको जब गुड्स वापस करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न। नाउ हु इज रिसीविंग द गुड्स? यू आर रिसीविंग द गुड्स, ओके। तो आपके पास क्या आ रहा है? जब सेल किया था तो गुड्स गई थी, अब जब रिटर्न हो रहा है तो आपके पास गुड्स आएंगी, और किससे आएंगी? श्याम से आएंगी। श्याम इज द गिवर नाउ, ओके। तो रिवर्स कर देंगे एंट्री, एज वी हैव डन इन द परचेज रिटर्न, जस्ट रिवर्स द एंट्री एंड द एंट्री इज सेल्स टू श्याम। एंड वी डोंट डू लाइक दिस, वी हैव टू ऐड वन वर्ड। ये सेल था और ये सेल नहीं है, दिस इज व्हाट? दिस इज सेल्स रिटर्न, ओके। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम,
It's suppose 500 rupees goods he has returned, right? Just look at this. Sham is the giver right now. Sham return कर रहा है, तो goods कौन दे रहा है? Who is the giver? Sham. According to personal account, debit the receiver and credit the giver. Sham is the giver. And what you are receiving? You are receiving the goods back. ठीक है, और उन goods का नाम क्या दे देंगे आप? Sales return. Right students? So this way we have completed these return entry. This was the purchase return and this is the sales return. Okay, now do the illustrations properly. Whatever homework I'll be giving, just understand and then complete. Fine, don't cheat, although I'm giving the illustrations, but don't cheat from there. Just first do yourself and then tally. Okay, thank you.